Hello there, Assalamu alaikum. This is Amiz Dar Barakzai before you people. Once again, I'm back on my YouTube channel with Zamid Dar Barakzai. Today, I'm going to start my lectures about English grammar. And I have given you a lecture on whiteboard. This is about class. What is class and what are the types of class? And basically, for the first time, we should study two types of classes. One is dependent class and the second one is independent class. And then we have two types of conjunctions. In these classes we use two types of conjunction. One is coordinating conjunction and one is subordinating conjunction. Later on, after this lecture, I will give you a review about conjunctions. What is coordinating conjunction and what is subordinating conjunction. First of all, we will come towards class. What is class? Do you know class or not? Okay, I will tell you what is class. What is class? You people may not know, and sometimes many of teachers are there that they define class in different methods. They actually give its meaning to their own origin. So according to my point of view, a class consists of a subject and predicate. Now, what is subject and what is predicate? In a sentence, a subject is a person who does something or who does a work, and predicate after the subject or except the subject, the remaining part of the sentence is known as predicate. So there are two types of clauses. One is dependent clause and the second one is independent clause. What is dependent clause? Dependent clause means like we have something such as a sentence may be dependent on another sentence, and a person may be dependent on another person. So dependent clause is a type of clause, is a sort of clause that cannot stand alone. It means that dependent clause cannot give its full and final meaning without independent clause. So it means that dependent clause totally depends on independent clause. Now look at its definition. A clause that cannot stand alone, it does not give full meaning. It needs another clause to give complete meaning. It is dependent because we use subordinating conjunction in it. Now, what is subordinating conjunction? Subordinating conjunction is a type of conjunction that makes the sentence dependent on another clause, that makes a clause dependent on another clause. Simple लफ्ज़ों में यानी आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि भाई डिपेंडेंट क्लास हमारे पास वो क्लास है कि वो अपनी मानी खुद से मुकम्मल नहीं दे सकती, क्योंकि वजह ये है कि इसमें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो इस क्लास को दूसरे क्लास की क्या बनाता है, माताद बनाता है. तो यानी ये जो क्लास है वो खुद से अपनी मानी मुकम्मल नहीं दे सकते. नाउ वी हैव इट इज एग्जांपल्स लाइक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हमारे पास एग्जांपल कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या, अनलेस, until, though, although, nevertheless, nonetheless, despite, in spite of, if, when, what, etc. These are subordinating conjunctions that we use in dependent clause. Let's suppose we have an example here. If she works hard, she will pass exam. Now in this sentence, this is a complete sentence, and we have two type of clauses in this sentence. The first one is independent clause. Dependent clause. It is dependent clause. Why it is dependent clause? Because we have used if. If is क्या होता है? इफ़ हमारे पास क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है. इसलिए यानी इफ़ के ज़रिए से हमने इस क्लास को कौन सी क्लास की माताद बनाए? इस क्लास की माताद बनाए, मोहताज बनाए. अगर ये क्लास नहीं होता है हमारे पास, ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है और ये जो है हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है. अगर ये क्लास नहीं है तो इस क्लास की जो मानी है वो अपनी तरफ से मुकम्मल नहीं है, न ये क्लास अपनी तरफ से मानी मुकम्मल दे सकता है. वजह ये है कि यहाँ पर हमने क्या लगा, इफ़ के ज़रिए से हमने कंडीशन रखी, यानी हमने शर्त बनाया. यानी अगर वो मेहनत करती है या अगर वो सख्त मेहनत करती है, शी विल पास एग्ज़ाम, तो इम्तिहान पास करेगी. अगर वो मेहनत नहीं करती तो इम्तिहान पास नहीं करेगी. यानी ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये हमारे पास जो है
ये दूसरा वाला, ये जो है ये डिपेंडेंट क्लास है। अब बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पर इफ़ इस्तेमाल किया। इफ़ जो है वो हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए से हमने इस पूरे क्लास को इस क्लास की माताहत बनाया। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है और ये हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट क्लास है। इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है अनलेस वी ईट फूड वी विल डाई, यानी अनलेस हमारे पास खुद से एक नेगेटिव मतलब हमारे पास एक वर्ड है, चूँकि इसको नॉट की ज़रूरत नहीं है। अनलेस वी ईट फूड वी विल डाई, यानी जब तक हम खाना नहीं खाते हैं तब हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सेंटेंस के बिगिनिंग में स्टार्ट में मैंने फिर से क्या इस्तेमाल किया है, फिर से मैंने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल किया है। यानी इस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए से हमने इस पूरे क्लास को, यानी डिपेंडेंट क्लास है, हमने क्या बनाया, इसको हमने इसका मोहताज बनाया। वजह ये है, अब देखिए इसकी सेंटेंस जो है इसकी पूरा है, हमारे पास इसकी सब्जेक्ट भी मुकम्मल है, हेल्पिंग वर्ब भी है और इसकी वो भी है वी विल डाई, यानी इसके सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सारी मुकम्मल है। और ये जो है इसकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो मुकम्मल है, लेकिन यहाँ पर अनलेस के ज़रिए से हमने एक कंडीशन बनाए, यानी एक शर्त बनाए, इस सेंटेंस को हमने इसका मोहताज बनाया। इसके बाद हमारे पास तीसरा सेंटेंस है इन स्पाइट ऑफ एजुकेशन दे आर जॉबलेस, यानी तालीम होते हुए या तालीम के बावजूद वो क्या है, जॉबलेस, यानी नौकरी के बगैर उनकी कोई नौकरी नहीं है। फिर से हमारे पास एक क्लास है, सही है, इन स्पाइट ऑफ एजुकेशन, इन स्पाइट ऑफ हमारे पास फिर से क्या हो गया, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये दूसरा वाला हमारे पास जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि इसकी मानी मुकम्मल है और इसकी मानी मुकम्मल नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा वाला आता है वो आता है इंडिपेंडेंट क्लास। अब इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास मुख्तलिफ ग्रामर के माहिरीन जो है दे डिफाइन इट ऑन डिफरेंट मेथड्स, सही है। वो कैसे करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास जो होता है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ मतलब की तरह होता है, एक सिंपल सेंटेंस की तरह होता है। लेट्स सपोज मैं एक सेंटेंस आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। सेंटेंस ये है, मैं लिखता हूँ कि शी वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करती हैं। अब यहाँ पर इस सेंटेंस की सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मुकम्मल है और ये अपनी तरफ से अपनी मानी मुकम्मल दे सकती है, लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं और इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसमें हमारे पास दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यानी दो डिफरेंट कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। जब हम क्लासेस बनाते हैं तो क्लासेस बनाते वक्त हमारे पास कंजंक्शन की ज़रूरत होता है। कंजंक्शन दो किस्म की होता है, एक हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग होता है और एक हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग होता है। और इस लेक्चर के बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। तो अभी हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस की तरह होता है। इसकी डेफिनेशन को देखिए इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ क्लास दैट कैन स्टैंड अलोन, यानी ये एक किस्म की क्लास है जो कि अपनी मानी मुकम्मल दे सकती है एंड कैन गिव इट्स फुल मीनिंग विदाउट अनदर क्लास, यानी ये अपनी फुल मानी अपनी मुकम्मल मानी किसी दूसरे क्लास के मिक्स करने के बगैर भी दे सकता है। इसके बाद देखिए इट इज़ सिंपली नोन एज अ सिंपल सेंटेंस, यानी इसको हम बेसिकली एक सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है, इसमें एस वी ओ पैटर्न होता है। एस वी ओ पैटर्न क्या है, हमारे पास ये इंग्लिश में एक बेसिक कंसेप्ट है। एस का मतलब है सब्जेक्ट, वी का मतलब है वर्ब एंड ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, सही है। अगर किसी सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें मौजूद है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इसमें कोई एडवर्ब ऑफ नेगेशन इस्तेमाल किया है या कोई डबल एच वर्ड या कोई हेल्पिंग वर्ड बिगिनिंग में इस्तेमाल किया है तो फिर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाती है। अब अगर हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मौजूद है, यानी एक सेंटेंस है जैसे कि मैं कहता हूँ कि ही हेल्प्स मी, वो मेरा मदद करता है। अब ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास भी हो गया और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस भी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, वाइल दिस क्लास। अब मैंने यहाँ पर बता दिया कि भाई जो डिपेंडेंट क्लास है वो ख़ुद की मानी मुकम्मल नहीं दे सकता, इसको एक दूसरे क्लास की भी ज़रूरत होता है तब इसकी मानी मुकम्मल होता है। जबकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्लास है ये क्या होता है, वाइल दिस क्लास रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू कनेक्ट टू क्लासेस प्रेजेस और वर्ड्स। जबकि जब हम कंडीशनल क्लासेस बनाते हैं या दो क्लासेस को मतलब इसको कनेक्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग
कंजंक्शन जो होते हैं वो दो इक्वल रैंक ऑफ सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। टू इक्वल रैंक ऑफ सेंटेंसेस का मतलब है कि दोनों जो सेंटेंसेस है या दोनों जो क्लासेस है वो क्या होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी अगर आपका क्लास एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, फिर इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी क्लास एक कोऑर्डिनेटिंग है, सही है, और एक का हमारे पास मतलब दोनों कोऑर्डिनेटिंग क्लासेस है या दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस है, फिर इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल को देखिए, ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं इसका एक फार्मूला है, सही, ग्रामरियंस ने बनाया है। ये हमारे पास क्या होता है, फेन बॉयज़ होता है। सही, फेन का मतलब क्या है, एफ से मतलब है फॉर, ए से मतलब है एंड, एन से मतलब है नॉर, बी से मतलब है बट, और से मतलब है, ओ से मतलब है और, वाई से मतलब है येट, एंड एस से मतलब है सो। इसको मैंने आगे पीछे किया है, सही है। तो फेन बॉयज़ जो है ये ग्रामर के लिए से ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक फार्मूला है, सही है। ये मैं बाद में समझाऊंगा। अब देखिए, मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट क्लासेस के मैंने दो सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला हमारे पास क्या है, दे विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेंगे। अब इस सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यानी तीनों चीज़ें जो हमारे पास एसवीओ पैटर्न था वो एसवीओ पैटर्न मौजूद है, यानी अपनी मानी मुकम्मल दे सकती है। ये मतलब किसी दूसरी क्लास की ज़रूरत नहीं रखता है, यानी ख़ुद से वो अपनी आज़ाद है। दूसरा है वी विल इनवाइट देम, हम इनको दावत देंगे, सही है। फिर से यहाँ पर सेंटेंस मुकम्मल है, मानी मुकम्मल है। उर्दू के ट्रांसलेशन से पता चलता है कि इसकी मानी मुकम्मल है, क्योंकि इसकी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यानी एसवीओ पैटर्न मुकम्मल है। इसमें कोई कंडीशन नहीं रखा गया, यानी कोई शर्त नहीं रखा गया। इसके बाद एग्जाम्पल है। अब मैं यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखी हैं, सही, हमारे पास दोनों जो है वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की मैंने दो एग्जाम्पल लिखा है कि इफ़ शी वर्क्स हार्ड शी विल गेट सक्सेस। अब इस सेंटेंस में देखें, ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, सही है। इफ़ शी वर्क्स हार्ड, मैंने यहाँ पर इफ़ लिखा है, जो कि इफ़ ग्रामर के लिए से क्या होता है, ये हमारे पास कंजंक्शन होता है। क्या होता है, ये कंजंक्शन होता है, समझ आ रहा है। और ये जो इफ़ के ज़रिए से हम इस पूरे क्लास को इस क्लास के माताद बनाते हैं, यानी मोहताज बनाते हैं। इसका मतलब है कि अगर इस क्लास में यानी इफ़ होता है, सही, ये हमारे पास कौन सी क्लास हो गया, ये डिपेंडेंट क्लास हो गया। और ये वाला जो ऐसा है शी विल गेट सक्सेस, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। इंडिपेंडेंट क्लास यानी मकसद ये था कि यहाँ पर जो इसके मानी है ख़ुद से मुकम्मल है, इसमें कोई जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी इस सेंटेंस में मतलब सब ऑर्डिनेशन नहीं है। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की माताद नहीं होती है। दूसरा सेंटेंस, इफ़ यू ईट हेल्दी फूड, अगर आप सेहतमंद खुराक खाते हैं, यू विल नॉट डाई, आप नहीं मरेंगे। तो इसी सेंटेंस में फिर हमारे पास ये जो क्लास है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये हमारे पास ये जो क्लास है ये डिपेंडेंट क्लास है। वजह ये है कि यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हमने यानी जो कंजंक्शन है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल किया है। Okay, as I told you, after class we have two basic terminologies that are कंजंक्शंस, सही है। इसमें हमारे पास दो किस्म के कंजंक्शन होते हैं। एक्चुअली हम पहले कंजंक्शन जानेंगे कि भाई कंजंक्शन हमारे पास क्या होता है। कंजंक्शन को हम कनेक्टर्स भी कहते हैं। ये दो क्लासेस, दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब कैसे कनेक्ट कर देते हैं, तो सही ये कनेक्शन हम जानेंगे। सही है, दो यानी ये जो कनेक्शन है हम दो तरीक़ों से बता सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बता दिया कि भाई हमारे पास क्लासेस दो होती ही, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। सही है, जब हम मतलब एक दोनों डिपेंडेंट क्लासेस को इकट्ठे कर रहे थे तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि भाई जो हमारे पास कंजंक्शन है फेन बॉयज़, सही है, वो दो इक्वल रैंक ऑफ क्लासेस को कनेक्ट करते हैं। यानी दोनों क्लासेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी हर एक मतलब जो मानी है वो अलग से दे सकती है। यानी एक क्लास दूसरे क्लास का मोहताज नहीं होता है, बल्कि ये दोनों एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो दरमियान में जब हम कनेक्टर को एडजस्ट करते हैं, यानी जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को फिट करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। सबसे पहले कंजंक्शन क्या है, यानी कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन कनेक्ट्स टू क्लासेस, टू फ्रेजेस और टू वर्ड्स। यानी कंजंक्शन जो है दो क्लासेस, दो फ्रेजेस या दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। क्लास मैंने बता दिया कि क्लास में क्या होता है कि क्लास कंटेन्स एटलीस्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट या सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, सही है। दूसरा हमारे पास है फ्रेज, क्या होता है, फ्रेजेस आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इट हैज़ नो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी फ्रेजेस जो है वो लफ्ज़ों की मजमूआ होता है, यानी लफ्ज़ों की एक कलेक्शन होता है। इसमें न कोई सब्जेक्ट होता है, न कोई वर्ब होता है और न कोई ऑब्जेक्ट होता है, सिर्फ लफ्ज़ों की मजमूआ होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि
ये आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर इस सेंटेंस मैंने क्या कहा, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये 4 वर्ड्स है, यानी इसमें न कोई सब्जेक्ट है, न कोई वर्ब है, न कोई ऑब्जेक्ट है, यानी ये सिर्फ लफ्ज़ों का मजमा है जो कि एक नाउन का काम करता है। प्रेस क्या होता है, वो एक्चुअली नाउन का काम ही करता है। इसके बाद हमारे पास 2 वर्ड्स को भी कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अली एंड बारी, अली एंड अहमद, सही है, मी एंड यू, सही है, ऐसे भी इसको हम क्या करते हैं, 2 वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सही है। अब मैंने यहाँ पर 2 मतलब क्लासेस की एग्जांपल उठाए हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इट लिंक्स और कनेक्ट्स टू इक्वल रैंक ऑफ सेंटेंसेस। हमारे यहाँ पर टू इक्वल रैंक ऑफ सेंटेंसेस से क्या मतलब है, या टू इक्वल रैंक ऑफ क्लासेस से क्या मतलब है। टू इक्वल रैंक ऑफ क्लासेस का मतलब है कि दोनों क्लासेस जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि शी washes dishes, या she washes clothes। दूसरा मैं लिखता हूँ he eats food। अब मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग सेंटेंसेस लिखे। हमारे पास शी जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वॉशेस जो है वो हमारे पास यानी एक्शन वर्ब होता है। इसके बाद हमारे पास जो क्लॉथ्स है, सही है, वो हमारा यानी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में यानी SVO पैटर्न मुकम्मल है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दोनों पैटर्न मुकम्मल है, सही है। ये एक अलग सेंटेंस है, यानी अपनी मानी मुकम्मल से दे सकती है। इसी तरह ये फिर से हमारे पास जो है ही जो है सब्जेक्ट है, ईट जो है वो हमारे पास एक्शन वर्ब है, और फूड जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब हो गया कि भाई जब दोनों सेंटेंसेस पॉजिटिव हो, यानी दोनों सिंपल सेंटेंसेस हो, यानी दोनों जो है वो अपनी मानी मुकम्मल दे सकती है। जब इनके दरमियान में हम कोई कंजंक्शन फिट करते हैं, यानी कौन सी कंजंक्शन फिट करते हैं, इसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फिट करते हैं। जैसे कि शी वॉशेस क्लोथ्स, वो कपड़े धोती है, ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। अब इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान में हमने क्या फिट किया, इसमें यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जब एडजस्ट किया तो ये दोनों सेंटेंसेस को मतलब इसको हमने सबमर्ज किया, इससे हमने एक सेंटेंस बनाया। फिर इस सेंटेंस को हम कौन सी सेंटेंस कहते हैं, इसको फिर हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, सही है। यानी दोनों जो क्लासेस है, अब दोनों यानी सिंपल सेंटेंसेस है, इन सिंपल सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, यानी जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। अब ये जो है वो अब ये एक क्लास बन गया, दोनों अलग अलग पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, हमने इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए से सबमर्ज किया। अब ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इक्वल रैंक ऑफ सेंटेंस। अभी आप लोग जान गए कि भाई इक्वल रैंक ऑफ सेंटेंसेस का मतलब है कि भाई दोनों सेंटेंसेस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होता है। हर एक ही अपनी अलग सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, इसमें कोई कंजंक्शन इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। जब इनके दरमियान हम कोई कंजंक्शन इस्तेमाल करता है तो फिर ये दोनों सेंटेंसेस से हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की अपना एक फॉर्मूला है, इसको हम क्या कहते हैं, फेन वॉइस कहते हैं। मैंने पहले भी बता दिया। फेन वॉइस के F से मतलब है फॉर, एंड A से मतलब है एंड, N से मतलब है नॉर, इसके बाद B से मतलब है बट, O से मतलब है और, Y से मतलब है यट, A से मतलब है सो। जब इन कंजंक्शन को हम क्लासेस के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं, सही है, तो ये क्या बन जाता है, ये इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। और उसी जो सेंटेंस बनती है, जिसकी जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं। अब एक अलग से मतलब सेंटेंस हो गया, इसकी मैंने खुद से मुकम्मल है। लेट सपोज कंसिडर करें कि यहाँ पर एंड है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, सही, इसको मैं रिमूव करता हूँ। दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अब 2 अलग अलग सेंटेंसेस है, दोनों की सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो है यानी इसकी मुकम्मल है, यानी मेन सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और हमारे पास एक्शन वर्ब है। इसके बाद आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, सही है, इसमें फिर से हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और जो हमारे पास एक्शन वर्ब है ये मौजूद है। अब इनके दरमियान में एक कंजंक्शन को फिट कर देता हूँ, एंड, सही है। अब इन दोनों सेंटेंसेस से हमने एक सेंटेंस बनाया, इसके दरमियान हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड इस्तेमाल किया, सही है, तो ये क्या बन गया, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। और इसको हम क्या कहते हैं, दोनों जो है वो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लासेस है। दूसरा सेंटेंस है वी आर स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं, एंड दे आर लर्निंग, और वो सीख रहे हैं। अब ये भी एक पॉजिटिव है और ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इनके दरमियान में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड को एडजस्ट किया, लगाया, तो ये क्या बन गया, ये एक सेंटेंस बन गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, और ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बाद है लास्ट वन हमारे पास है
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर दोज कंजंक्शन व्हिच ज्वाइन टू क्लासेस और टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस, यानी दो क्लासेस को वो कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो दो क्लासेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, दोनों जो है वो इक्वल रैंक आप क्लासेस नहीं होते, यानी दोनों जो है वो डिपेंडेंट, यानी जो दोनों इंडिपेंडेंट क्लास नहीं होते, बल्कि इसमें एक क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लास होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। अब इसकी एग्जांपल देखें, इसकी पहले डेफिनेशन देखिए, इट कनेक्ट्स टू डिफरेंट क्लासेस, आई एक डिपेंडेंट क्लास होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल हमारे पास है, डिस्पाइट रेनिंग शी केम टू कॉलेज, यानी बारिश होने के बावजूद या बारिश बरसने के बावजूद वो कॉलेज आई। अब यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है डिस्पाइट। डिस्पाइट जो है वो हमारे पास एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इस कंजंक्शन के ज़रिए से हमने इस क्लास को क्या बनाया? इस दूसरे क्लास का माताद बनाया, सबऑर्डिनेट बनाया। दूसरा एग्जांपल है, इफ़ ही स्पीक्स ट्रूथ, अगर वो सच बोलती है, ही विल बी अवार्डेड, इसको इनाम दिया जाएगा या उसको इनाम मिलेगा। सही है। अब फिर से मैंने यहाँ पर इफ़ इस्तेमाल किया। इफ़ फिर से हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। शी, अच्छा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। सही है। तो हमारे पास एक जो है एक इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरा जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास कंजंक्शंस होते हैं। सही है। कंजंक्शन में हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड आई होप you understood totally, and in next lecture we will meet again. Thank you so much.